First of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great Vaheguru and Tanta Shri Guru Ramdas Ji. Today we will start the very important topic of the unit 4, that is called a Van der Pau method. That is called a Van der Pau method. As far as the exams are concerned, it is very important questions. It seems to be very difficult, but it's very quite easy. बहुत ही आसान है ये, ठीक है? कैसे आसान है देखिए. First of all, I would like to tell you कि हम इससे करते क्या हैं, ठीक है? Van der Pau method से हम क्या निकालते हैं? To find resistivity, to find a resistivity, to find the resistivity of a specimen, sample. Resistivity मतलब रो, resistivity मतलब रो. क्या निकालते हैं फ्रेंड्स? रो निकालते हैं. क्या निकालते हैं बेटा? रो, ठीक है? आपने टेंपरेचर टू में एक क्वेश्चन पढ़ी होगी, R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. तो रो क्या अपना क्या आ गया? रो क्या आ गया? R A upon L. R A upon L. पढ़िए ना आपने. R is equal to rho L by A. तो बेटा रो कितना आ गया? R A by L. ठीक है? What are the units of rho? This is called resistivity. R has the unit ohm. Area has meter square divided by meter. Meter से meter cancel. So we get a ohm meter. We get a ohm meter. Ohm meter are the units of the resistivity. Are the units of the resistivity. ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सैंपल है. ये हमारे पास क्या है? एक सैंपल है. ये हमारे पास क्या है? एक सैंपल है जिसकी थिकनेस है स्मॉल d. इसकी थिकनेस क्या है? स्मॉल d. ठीक है? स्मॉल d is the, let us say that d is the thickness of the sample. Please write. We have a sample. First of all, please write the first point. It is used to find resistivity of a sample. It is used to find resistivity of a sample. Second point लिखिए. Let small d be the thickness of the sample. Let small d be the thickness of the sample. ठीक है? आगे लिखिए essential conditions. Essential conditions कि what are the conditions under which we can apply this method. ठीक है? What are the important conditions under which we can apply the Van der Pau method? The very first essential condition is the sample must be the flat shape. The sample must be in the flat shape. The sample should be in the flat shape. Flat पता ना? सीधा. The sample should be in the flat shape. Second is sample do not have any internal holes. Sample do not have any internal holes. उसके अंदर holes नहीं होने चाहिए, ठीक है? Otherwise, whatever the readings we will take, whatever the calculations we will take, it will not give a accurate result. ठीक है? Sample do not have any internal holes. Third point is sample must be homogeneous. Sample must be homogeneous. See, what is the meaning of homogeneous? Homogeneous means in all directions. In all directions, property of the sample must be same. Property of the sample must be same. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड लाइक टू से टेम्परेचर क्या होता है? चाहे आप उसको कॉर्नर पे चेक कर लीजिए, चाहे सेंटर पे चेक कर लीजिए, तो वो क्या होता है? होमोजीनियस. क्या होता है? होमोजीनियस. ठीक है? फोर कॉन्टेक्ट्स. सी, four contacts is located at the edges. ठीक है? Four contacts is located at the edges. ठीक है? हमने जो contacts लेने हैं वो edges पे लेने हैं, center पे नहीं लेने. ठीक है? क्या लेने हैं? Four contacts. FOUR, four contacts is taken at the edges. Edges means sides. ठीक है? At the corner. It's taken at the edges. Last point एडवांस से लिखिए. Sample must be sample thickness small d. Sample thickness small d. Sample thickness small d must be less than the length and width. Must be length and width. इसका मतलब सैंपल हमारा कैसा होना चाहिए? एक थिन शीट की शेप में होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हमारा एक थिन शीट की शेप में होना चाहिए. ठीक है? ये गेटिंग द पॉइंट. जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पकड़ा ना मेरे को रजिस्टर. यस. सी, जस्ट लाइक this register. ठीक है? Thickness is very small. Thickness is very small as compared to the length and breadth. ठीक है? Sample thickness must be less than the length and width. See, according to Ohm's law, V is equal to I. V is equal to
आई आर। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, क्वाइट इजी। तो आर बेटा कितना आ गया, v अपॉन आई, ठीक है। नाउ सी हम इसी चीज को लिखेंगे लेकिन एक डिफरेंट तरीके में लिखेंगे, ठीक है। वी आर राइटिंग दिस थिंग बाय अ डिफरेंट वे। सी r इज इक्वल टू v अपॉन आई, इसका मतलब है कि r एक लिखने का तरीका है, r मतलब i, r i कॉमा v, इसका मतलब i इज करंट एंड v इज द पोटेंशियल ड्रॉप, v इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। अक्रॉस द एंड्स, अक्रॉस द एंड जिसके अक्रॉस हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है, पहला फॉर्मूला, ठीक है। r i कॉमा v इज इक्वल टू v अपॉन i, ठीक है। आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, लेट अस से this is my sample, let us say this is my sample। तो इसके कितने प्रॉब्लम्स हो गए बेटा, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, इसका वर्टिकल नहीं हो गया, ये क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल। तो मैंने क्या किया, ये जो वर्टिकल है ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। वन, so first of all numbering is given, numbering is given in anti clockwise direction, numbering is given in anti clockwise direction। तो देखो मैंने anti clockwise direction में दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो these are the vertical edges 1 2 and 3 4 are called vertical edges, ठीक है। इसका मतलब इसको देखो, ये वाला एज और ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज वर्टिकल एजेस हो गए। तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया 1 और 2 मतलब ये वाला एज और ये वाला एज, इसके क्रॉस क्या लगा दिया हमने, एमीटर। क्या लगा दिया, एमीटर। और ये वाला जो वर्टिकल एज है इसके क्रॉस क्या लगा दिया हमने, वोल्टमीटर, ठीक है। समझ आ गया, वर्टिकल एज इन दोनों एजेस के क्रॉस हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। 1 2 के और 3 4 के क्रॉस हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। तो ये है वर्टिकल मेजर, दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल मेजर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 इसके क्रॉस क्या लगा दिया हमने, एमीटर। इसके क्रॉस क्या लगा दिया, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर। एमीटर क्या काम करता है, करंट मेजर करता है। क्या करता है, बी क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। अब बेटा लगाओ इस पे, देखो इस पे लगाओ, ये वाला फार्मूला लगाओ, ओम्स लॉ वाला R, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पास द करंट फ्लो फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। मैं करंट को कैसे पास करवाऊंगा, 1 to 2। सो दिस इज द एरो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एंड 1 to point 1 to point 2। इसका मतलब अगर करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, इट विल गिव मी अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 3 और 3 4 4 3। अगर करंट 1 2 के क्रॉस फ्लो करेगा तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस मिलेगा बेटा, 4 3 के क्रॉस। तो लिखिए R 1 2 बिकॉज़ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 1 2 comma what is voltage, voltage is calculating across 4 3 1 2 4 3 is equal to R is equal to V upon I। तो V किसके क्रॉस आ रहा है बेटा, 4 3 अपॉन करंट किसके क्रॉस आ रहा है, 1 2। ठीक है, आसान, सिंपल, क्वाइट इजी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सामने वाला जो है करंट वाला, ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए, जो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर में आना चाहिए। सेकंड, अब इस कनेक्शन को उल्टा कर दो। Now let us say current question 1, let us say current is flow from point 2 to 1, current is flow from point 2 to 1। अगर बेटा करंट 2 to 1 फ्लो करेगा तो पोटेंशियल किसके क्रॉस आएगा, 3 to 1। R21 कॉमा 21, दिस इज पोटेंशियल। सी दिस इज I वैल्यू है और ये क्या बेटा, V वैल्यू। ये क्या है, I वैल्यू, ये क्या बेटा, V वैल्यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी R21 gives means current flow from point 2 to 1, it gives me a potential drop across 3 to 4 3 to 4 is equal to V। what is V, 3 4 upon I21 because current is flowing from 2 to 1। अगर हम ध्यान से देखो दोनों रिलेशन को तो देखो जो पहले वाला पार्ट है वो कहां पे आता है, डिनोमिनेटर में। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आता है न्यूमरेटर में। तो ये जो एक मेजरमेंट होगी, एक सेट हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने वी हैव कंप्लीट वन सेट। Now I will interchange voltmeter by ammeter and ammeter by voltmeter। ये वाला डायग्राम जो फिगर 2 में है, ठीक है। फिगर 1 का हो गया काम, फिगर 2 में लगाओ बेटा। Let us suppose the current will flow from 3 to 2 3 to 4। Let us suppose current will flow from 3 to 4। तो लगाओ केशव, कैसे आएगा, 3 to 4 3 to 4 मुझे क्या देगा, पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस, 2 1। किसके क्रॉस देगा, 2 1। R31 ये क्या हो गया, I, ये क्या हो गया, V। सिमिलरली ये क्या हो गया, I, ये क्या हो गया, V। तो देखो R31 will give me the potential drop across 2 1।
3 4 2 1 is equal to v upon I. तो v कितना है 2 1, क्योंकि बिकॉज वी आर मेजरिंग अ पोटेंशियल क्रॉस 2 1 अपॉन I t4. तो देखो क्या हो रहा है, जो पहले वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में जा रहा है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में जा रहा है. सिमिलरली नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम, रिवर्स कर दो, जो सेकंड वाली इक्वेशन है देखो क्या होती है रिवर्स. अब करंट को किसमें फ्लो करो 4 to 3, इसमें फ्लो करो 4 to 3. ठीक है रोहित, क्या आएगा when current will flow from 4 to 3 then we will get a potential drop across 1 to 2. तो ये क्या आ गया बेटा 4 3 1 2, तो क्या आ गया v, what is v 1 2 upon r सॉरी I 4 3. तो आप देख रहे हो पहले वाला पार्ट कहां जा रहा है डिनोमिनेटर में, सेकंड वाला पार्ट न्यूमरेटर. पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर, पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर, पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर. ऐसे याद रखना है इसको ताकि गलती के चांसेस हो ही नहीं. तो बाय दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड अ वर्टिकल मेजरमेंट. ठीक है, अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल बेटा ऐसे है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया. ठीक है, इसमें मतलब हम पहले हम ऐसे लगा रहे थे, ऐसे लगा, अब हम कैसे लगाएंगे ऐसे, कैसे लगाएंगे ऐसे. ये वाला एंड को क्या लगा देंगे, ये वाले एंड पे लगा देंगे वोल्टमीटर, और ये पिछले एंड पे क्या लगा देंगे एमीटर. क्या लगा देंगे लगाओ फिर. Let us suppose the current will flow from 2 to 3. Let us suppose the current will flow from 2 to 3. तो 2 to 3 करंट मुझे क्या देगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 4. तो 1 4 आ गया बेटा. ये क्या है I, ये क्या है V. तो बेटा क्या आ गया V 1 4, V 1 4 upon 2 3. फिर वही वाला पार्ट, पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर. तो सिमिलरली रिवर्स कर दो. Let us suppose current will flow from 3 to 2. 3 to 2 मुझे क्या देगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 to 1. सो दिस इज I, दिस इज V. तो R is equal to V upon I, दिस इज V for 1 upon I 3 2. फिर वही पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर. सिमिलरली उल्टा कर दो. नाउ इंटरचेंज द कनेक्शंस, रिप्लेस एमीटर बाय वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर बाय एमीटर. सो R41 का मतलब क्या है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम 0.4 to 0.1. इट विल गिव मी अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट्स 3 2. तो बेटा ये क्या हो गया I, ये क्या हो गया V. तो बेटा ये क्या हो गया, इट विल गिव मी अ V32. ठीक है, V32 अपॉन I41. फिर वही पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर. लास्ट बट नॉट लीस्ट उल्टा घुमा लो. लेट अस सपोज द करंट विल फ्लो फ्रॉम 1 to 4. पहले 4 to 1 था, अब 1 to 4. तो 1 to 4 में क्या आएगा रोहित, क्या आएगा बुलेरिया. 1 to 4 में मुझे क्या देगा 2 to 3 पोटेंशियल ड्रॉप. तो ये I आ गया बेटा, ये क्या आ गया V आ गया. V23 अपॉन I14. तो काफी आसान देखा आपने. तो वही पहला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर. तो इसका मतलब ये जो चार इक्वेशंस हैं ये मुझे क्या देगी वर्टिकल, ये मुझे क्या देगी चारों का एवरेज ले लो. Adding equations 1 2 3 and 4, I'm getting a average. This will give me R vertical. This will give me a R vertical. Similarly, adding equation 5 6 7 and 8. यहाँ पे जगह कम है, तो लिख दो add equations 5 6 7 and 8. हमें क्या देगा R horizontal. क्या देगा R horizontal. तो R horizontal क्या आ गया 5 6 7 8 को जोड़ दीजिए तो मुझे क्या आ जाएगा R vertical आ जाएगा. क्या आ जाएगा R vertical. अब मान लीजिए कि हमारा जो इसमें रैंडम एरर है वो क्या है 0 है. रैंडम एरर क्या है 0. अगर हमारा प्रैक्टिकल रैंडम एरर 0 है, इट मींस हमने प्रैक्टिकल बहुत अच्छा किया है, तो इसका मतलब ये R हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू क्या होगा R. तो मैंने क्या लिख लिया R हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू R वर्टिकल इज इक्वल टू R. लिख दीजिए फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस. ठीक है बेटा, फॉर आइडियल केस. ठीक है, एरर तो होती है फॉर आइडियल केस. ठीक है, लिख लेना फॉर आइडियल केस. तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको मेमोराइज करना है. रिसीविटी का रिसीविटी इज इक्वल टू पाई आर स्मॉल डी अपॉन नेचुरल लॉग 2. पाई इज अ कांस्टेंट, यू नो. आर हमने निकाल लिया है, कहां से निकाला यहां से. ठीक है, डी क्या है थिकनेस ऑफ सैंपल. लॉग 2 आपको पता है, तो इसे हमने क्या निकाल लिया वेटर बॉ मेथड से रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल निकाल लिया. क्या निकाल लिया रेजिस्टिविटी ऑफ अ सैंपल. एनी डाउट बेटा? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी. देखने में लग रहा था कि डायग्राम कुछ बहुत ही होगा मुश्किल, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट इजी. समझ आया? ठीक है, सिंपली वी हैव टू यूज दिस फार्मूला. सिंपली वी हैव टू यूज दिस फार्मूला. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल मेजरमेंट, देन वी हैव टू टेक अ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, देन टेक मीन ऑफ ऑल,
ठीक है, बाय इफ द एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी गुड देन r horizontal is equal to r vertical is equal to r. This is the standard formula. Rho is equal to pi r small d upon log t. What is the thickness of sample? What is the thickness of a sample? This is called a thickness of sample. And what we have assumed that हमने क्या माना था, thickness क्या होनी चाहिए, length और width से कम होनी चाहिए. मतलब it must be in the sample हमारा कैसा होना चाहिए, एक thin sheet की shape होनी, कैसा होना चाहिए, thin ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एक thin sheet की ये length होगी, ये क्या होगी, breadth, लेकिन width इसकी क्या बहुत कम. तो ये पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4. ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, लेकिन ये वो मैंने आपको बता दिया सारा. तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द वेन डेर पॉवर मेथड. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक वी हैव वेरी ब्यूटीफुली डन दिस आर्टिकल. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. तो प्लीज अगर आज का अच्छा लगा हो तो ये हमारा चैनल है डीजे एंड डीजे फिजिक्स, फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू, कल मिलते हैं.